اللہ میری رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میری رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں ہے۔ یہ بہت مشہور و معروف شاعر ماجد دیوبندی صاحب کا یہ شعر ہے، اور ایک زمانے میں کیلنڈروں پہ لکھا جاتا تھا، بہت مقبول تھا یہ شعر۔ اور آج کا دور، آج میں لائیو کر رہی ہوں، کوئی سوشل ایشو نہیں ہے، کوئی ویسے بھی ٹاپک نہیں ہے۔ آج ایک خالی کہ انسان کیوں پریشان ہے، اپنی زندگی سے پریشان ہے، کیوں صبر شکر رخصت ہوتا جا رہا ہے، کیوں کچھ عجیب قسم کی بیماریاں جو میں نے بھی پہلی بار سنی، اینزائٹی، آپ سوشل اینزائٹی کا شکار ہیں، آپ فزیکلی اینزائٹی کا شکار ہیں، آپ اس اینزائٹی کا شکار ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے بیچ میں کہاں سے آئیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اگر آپ دیکھیں کہ دور جدید جو چل رہا ہے اس میں بہت زیادہ ترقی کری ہے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے آپ لوگ ہوں، آپ کا لیونگ سٹائل ہو، آپ کی انکم ہو، بہت زیادہ لوگوں نے ترقی کری ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو اگر 10,000 بھی کما رہے تھے، لاکھ 2 لاکھ کما رہے ہیں۔ اور پہلے زمانے میں گھروں میں ہی کھانا بنانے کا رواج ہوتا تھا، اب تو آپ دیکھیں قدم قدم پر ریسٹورینٹ بھی کھل گئے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ بھی اگر آپ گھر میں ہیں اور کھانا نہیں بنانا چاہتے، یا کچھ ایسا آپ کو کھانا ہے جو گھر میں نہیں بنا پا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی بہت سارے سوشل پلیٹ فارم ہیں، امیزون ہے، سویگی ہے، زومیٹو ہے، جہاں پر آپ کھانا بک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھی آپ پھر بھی پریشان ہیں، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ میں ڈپریشن کا شکار ہوں، بہت زیادہ سوچ آ رہی ہے، بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ کیوں ہے ٹینشن؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہماری زندگی میں وہ ٹینشنز کیوں ہیں؟ کیوں ہم اتنے پریشان ہیں؟ وجہ صاف ہے کہ ہمارے اندر صبر ختم ہو گیا، ہمارے اندر اللہ کو لے کے شکر ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس جو ہے ہمیں وہ نہیں ہے، اس سے زیادہ چاہیے۔ پہلے اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں حلال روزی دے، اور جب اللہ آپ کو حلال روزی دیتا ہے تو کہتا ہے اللہ صرف اتنا ہی سا دیا مجھے، اس کو تو فلانے کو، ڈمکانے کو، زمانے کو تو اتنا دے رکھا ہے، مجھے تو اتنا نہیں دیا۔ تو جہاں پر ہمارا صبر ختم ہوتا ہے وہیں سے اینزائٹی کی شروعات ہوتی ہے، وہیں سے ڈپریشن کی شروعات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کتنے اچھے اچھے کالجز کھل گئے ہیں، لوگ شہروں کو موو کر رہے ہیں، اپنے پرسنل بزنس بنا رہے ہیں، ایک سے ایک آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں، آپ کے بچے ماشاءاللہ الحمدللہ اچھی اچھی کالجز میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں آپ کا جو پریشر ہے اپنے بچوں پر بہت زیادہ ہے۔ ابھی اگر آپ کو پتا ہو، ہندوستان میں نیٹ کا امتحان کلیئر کرا بچوں نے، اور کافی اچھا ریزلٹ بھی رہا، اس کے باوجود 7 سے 8 بچوں نے خودکشی کر لی۔ کتنی عمر رہی ہوگی ان بچوں کی؟ ماتر 18 سال، 17 سال کے وہ بچے جو خواب دیکھ رہے تھے، جن کو بھی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں، جو موت کو جانتے بھی نہیں تھے، انہوں نے موت کو گلے لگا لیا۔ ان کو ابھی زندگی کا بھی صحیح سے علم نہیں تھا، انہوں نے موت کو گلے لگا لیا۔ وجہ ان کے لے کے ڈیزائر، ان کی خواہشات، کیونکہ وہ نیٹ کلیئر نہیں کر پائے، وہ MBBS کو کریک نہیں کر پائے، MBBS میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا۔ تو کہیں نہ کہیں یہاں پیرنٹس بھی بہت زیادہ ذمہ دار ہیں، کیونکہ پیرنٹس اپنی اولادوں کو ایک طرح کا یہ سوچتے کہ ہمیں کمپٹیشن لگانا ہے، ہمارا پڑوسی یا ہمارا خاندان والا یا ہمارا کوئی بھی ہمارے ساتھ جو جاب کرتا ہے، ہمارا کولیگ، اگر اس کا بچہ MBBS میں ایڈمیشن لے رہا ہے تو میرا بچہ کیوں نہیں لے گا؟ تو وہ پھر اپنے بچے کے اوپر ایک فری فنڈ کا برڈن ڈال دیتے کہ تو نے بھی MBBS میں ایڈمیشن لینا ہے، تو نے بھی MBBS میں ایڈمیشن لینا ہے، تو نے نیٹ کلیئر کرنا ہے۔ اور جب یہ نیٹ کلیئر نہیں ہوتا تو بچوں کو ڈر لگتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اب ماں باپ ان کو نہیں چھوڑیں گے، ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، ساری زندگی ماں باپ کے تانے سنیں گے، اچھا فلانے نے تو کلیئر کر لیا، تو ہی رہ گیا گدھے، نکمے، نکھٹو، تیرے پہ اتنا پیسہ خرچ کرا، تو نے کلیئر نہیں کرا۔ تو 17-18 سال کا وہ بچہ جو ابھی صحیح سے زندگی کو نہیں جانتا، صحیح سے ذمہ داریوں کو نہیں جانتا، صحیح سے دنیا کو نہیں جانتا، وہ صرف آلتو فالتو ڈیزائر کی وجہ سے آپ کی وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اس والے اس ایرا میں دے رکھی ہیں، اس زمانے میں دے رکھی، پہلے تو لوگ تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ گاؤں کی لائف ہوتی تھی، شہروں کو دور سے دیکھ کے خوش ہوتے تھے، تعلقات ہوتے تھے، آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے تھے، پڑوسی کو پڑوسی کی خبر ہوتی تھی، ایون پورے محلے کی خبر ہوتی ہے۔ اب تو لوگوں کو فلیٹ میں پتہ نہیں ہوتا، انتقال ہو جاتے ہیں، بہو منزلہ عمارت میں فرسٹ فلور میں اگر انتقال ہوتا ہے، 4th فلور والے کو پتہ ہی نہیں رہتا کہ فرسٹ فلور میں کوئی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ تو بے حسی کا عالم ہے اور امیدوں کا عالم ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بہت زیادہ ٹینشن ہے، بہت زیادہ سوچ ہے، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہے ہیں، دواؤں کے دوائیں نگل رہے ہیں، لیکن وہ جو سوچیں ہیں وہ بھی اگلنا بند نہیں ہوتی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مت سوچئے، لیکن اچھا سوچئے۔ اگر آپ صبر کرتے ہیں
تو सब्र के साथ अगर आपको अल्लाह ताला महीने में 29 दिन या 28 दिन अच्छा खाना खिला रहा है, और हो सकता है 29वें दिन या 30वें दिन या 31वें दिन आपको ऐसा हो सकता है कि खाने को ना हो, या जितना अच्छा आपने खाया हो वो ना हो, तो वहां पर अल्लाह का शुक्र अदा करा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र, ए रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र कि तूने इन 2 दिन या 3 दिन या 1 दिन मुझे चुना, तूने मेरी आजमाइश ली, तूने मुझे उस भूख का एहसास कराया जिस भूख से दुनिया के 60% मखलूक जूझ रही है। आपको पता है कि 60% दुनिया में जो इंसान है वो खाना नहीं खाते, पेट भर खाना नहीं मिलता, किसी को एक वक्त मिलता है, किसी को एक वक्त भी नहीं मिलता, कितने बच्चे भूखे रहते हैं। आप फिलिस्तीन को देखें, फिलिस्तीन में जबरदस्त तरीके से खाने का बहरान है, वहां पर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं बच्चे भूख से, लेकिन वहां पर शिकायतें नहीं कर रहे वो अल्लाह से, अल्लाह ताला से ही कह रहे हैं हम शोधा है। तो इसको कहते हैं सब्र, इसको कहते हैं शुक्र कि अल्लाह ताला ने आपको जो भी दिया उस पर सब्र करें, उस पर शुक्र करें, और जो सोच आ रही है उनको सोचे, जरूर सोचे, लेकिन अपनी सोचों से सीखें, उन सोच से डरे मत, क्योंकि वो सोच आपके अंदर खुद है। जाहिर सी बात है, अगर आप ये देखिए इस वक्त मोबाइल का जमाना है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। पहले जमाने में ना डेटा होता था ना मोबाइल होता था, अब तो अगर आपने खाली पर्सनल मोबाइल भी आप चला रहे 2GB आपको वैसे ही मिल जाता है, जो ना आपने रात के 12 बजे तक खत्म ही करना होता है, कि जैसे होता है फर्ज है हमने इसको खत्म ही करना है, चाहे अल्लम गल्लम कुछ भी देखो। और घरों में आप देखिए कि वाईफाई का एक तरह का ट्रेंड चल गया है कि वाईफाई माफिया इतना एक्टिव है कि हर फ्लैट में, खुद हमारे ओखला में अगर 4 मंजिला फ्लैट है तो 8-10 वाईफाई इसमें होते हैं, एक वाईफाई से भी लोगों का गुजारा नहीं होता। तो वाईफाई से आप पूरे दिन अनलिमिटेड वाईफाई चलाते हैं और आपको लगता है कि भाई कुछ भी देख सकते हैं। और आज का यूथ, आज की लड़कियां, आज के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा जो है इंस्टाग्राम वाली दुनिया में जा रहे हैं। इंस्टाग्राम की लाइव देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, वो 16-16 सेकंड की रील होती है, कुछ 30 सेकंड की रील होती है, उसमें सब कुछ चंगासी दिखाते हैं, सब चीज तब तरह खुशहाली दिखाते हैं। तो आप जो है, जो लोग टैली करते हैं वो अकल इस्तेमाल नहीं करते, कहते अच्छा क्या लाइफ है, शाहरुख खान कैसे जीता है, देखो ऐश्वर्या कैसे इसके गाउन उठा उठा के नौकर जा रहे हैं, देखो पाकिस्तान की हीरोइनें किस कदर खुश रहती हैं, किस अब कैसे बकरे कर रही हैं, किस तरह बन ठन के फोटो डालती हैं, किस कदर उनके शौहर जो उनको रोजाना गुलाब देते हैं। देखिए जिंदगी इंस्टाग्राम की जो रील होती वो नहीं होती, वो चंद सेकंड की रील होती है, पूरी जिंदगी नहीं होती। जहां पर आजकल की यूथ जो है, ज्यादातर लड़का और लड़की इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं, और यही वजह है बहुत ज्यादा सोशल एंजाइटी के साथ साथ अब मैं कहती हूँ कि मोबाइल एंजाइटी का शिकार हो गए ये इंस्टाग्राम की दुनिया को देखते हैं। और जब आप देखते हैं, आपका जो दिमाग है ना केमिकल लोचा ही है, आपका जो दिमाग केमिकल लोचा है ये, जब आप दिमाग में कुछ भी चीज डालते हैं, कुछ भी चीज देखते हैं, तो आपके दिमाग में गर्दिश करती रहती है, कभी ना कभी वो निकलना शुरू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी है या 2 घंटे की मूवी है, आप उस मूवी को आके घर में डिस्कस जरूर करते हैं, अच्छा उसका डायलॉग बड़ा अच्छा था, अच्छा वहां पर हीरोइन ने बड़ा अच्छा बोला था, विलन ने जो लाते मारी थी ना बड़ी जबरदस्ती, बड़ी स्टाइलिश मारी थी। तो जब आप एक फिल्म देखने जा रहे हैं महीने में या 2 महीने में, आपको वो चीजें भी याद रह जाती हैं, और आप दिन भर, आज का यूथ जो है वो इंस्टाग्राम देख रहा है, अल्लम गल्लम सल्लम रीले देख रहा है, तो सारी उसके दिमाग में गर्दिश करती हैं, और वो दिमाग में गर्दिश करने के बाद जो आप कहते हैं ना एंजाइटी का शिकार हो गया, डिप्रेशन का शिकार हो गया, अनलिमिटेड जो डिजायर उसके दिमाग में आती है, काश मुझे ये मिल जाता, काश मुझे ये क्यों नहीं मिला, वहीं से उसके दिमाग में जो है ना एक तरह का एक लोचा पैदा होना शुरू हो जाता, और वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार होना शुरू हो जाता कि मेरे पास ये क्यों नहीं है। यहीं से सब्र की रुखसती शुरू होती है। तो सोचिए, जरूर सोचिए। डॉक्टर भी कहता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि सोचा मत करो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दिमाग आपको अल्लाह ने दिया, आप सोचे ना, आपने सोचना ही होता है, आपने अच्छा सोचना होता है, बुरा सोचना होता है, अपना सही सोचना होता है। तो अपनी सोचों को सही जगह लगाइए, अपनी औलादों को उनके मुताबिक चलाइए, वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनको सब्र सिखाइए, उनके अंदर शुक्र डालिए कि हर चीज में शुक्र करा करो। अगर अल्लाह ताला आपको वो चीज नहीं दे रहा, तो हो सकता है अल्लाह ताला वो कहीं और आपको जाके चीज मिले, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं होती, ये छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है, ये बिल्कुल छोटी है। तो जब अल्लाह ताला ने हमारी उंगलियों को बिल्कुल बराबर नहीं बनाया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तमाम दुनिया के लोगों को बराबर बना दे। और एक दफा हुआ था कि एक जमाने में तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने एक सा बना दिया था, तो वहां पर नुकसान ही हुआ था। तो मजदूर कहता था मैं मजदूरी क्यों करूं, तू भी बाप मैं भी बाप, मैं तेरे से कमतर थोड़ी हूं। तो अल्लाह ताला ने अगर मजदूर बनाया, किसी को मिस्त्री बनाया, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, तो इनके लिए अलग अलग काम रखे हैं। डॉक्टर अपना काम करता है, मजदूर अपना काम करता है, इंजीनियर अपना काम करता है, मीडिया
अपना काम करता है, किसान अपना काम करता है, जवान अपना काम करता है, और तमाम लोग जो है वो एक ना उनको जिम्मेदारियों में बांधा गया है। तो उन जिम्मेदारियों को समझिए कि अल्लाह ताला ने आपको किस लिए चुना है और कितनी बड़ी जिंदगी है, उसमें ना लगाया करें साके। अपने घमंड को, अपने गुरूर को, अपने डिजायर को कंट्रोल में रखें। अगर आप मोमिन हैं और अल्लाह ताला आपको सब्र और शुक्र ही सिखाता है। सब्र अयूब मशहूर है कि अयूब अलैहिस्सलाम कितने साबिर और शाकिर थे, उनकी बॉडी में कीड़े पड़ गए थे, उनको कूड़े के पास रख दिया था, उसके बावजूद भी अगर कोई कीड़ा उनके जिस्म से नीचे चला जाता था तो वो कीड़े को उठा के फिर जिस्म पे रख लेते थे कि नामालूम ये मर ना जाए, क्योंकि ये मेरे जिस्म से खुराक ले रहा है, मेरे जिस्म को, मेरे सड़े हुए जिस्म को खा रहा है, और अगर ये मेरे सड़े हुए जिस्म को छोड़कर जमीन पर चला गया तो कहीं ये मर ना जाए। इसीलिए सब्र अयूब बहुत ज्यादा मशहूर है और बहुत ज्यादा फेमस है कि अगर सब्र देखना है तो अयूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखो। तो आप तमाम लोग अपने 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 जो भी लाइफ में है, अपने औलादों को देखिए वो क्या कर रहे हैं, किस तरह मोबाइल यूज कर रहा है, कौन कौन सी साइट पे जा रहे हैं, उनको बताइए कि ये जो लाइफ होती है, इंस्टाग्राम की लाइफ होती है, ये 16 सेकंड 1 मिनट की होती है, जिंदगी नहीं होती। जिंदगी एक ऐसे रास्ते का नाम है जहां आपको खुद नहीं पता कि आगे क्या होगा, आप मारे जाएंगे, आप जिंदा रहेंगे। कुछ लोग होते हैं उनको बड़ी एंजाइटी होती है, उनको सफर करने में एंजाइटी होती है। अगर प्लेन में बैठते कहते हैं हाय हाय प्लेन क्रैश तो नहीं हो जाएगा, गाड़ी में जा रहे होते हाय हाय गाड़ी पलट तो नहीं जाएगी, ट्रेन में बैठे हुए होते हैं कहते हैं हाय हाय ये ट्रेन आपस में टकरा तो नहीं जाएगी। मतलब निगेटिविटी आपके दिमाग में है, तो आप निगेटिव मत सोचा करें, खुदारा बिल्कुल भी निगेटिव मत सोचा करें, पॉजिटिव सोचा करें। और अल्लाह ताला यही है कि अगर आपको एक वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदे आते हैं, सहाबाए किराम आते हैं और पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या मुझे इसमें नुकसान होगा या नफा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं बोलते, वो सहाबाए किराम फिर चले जाते हैं। उसके बाद उनकी वाइफ फिर कहती है अरे पूछ कर आए, तो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोले ही नहीं। वो सहाबाए किराम दोबारा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या इसमें मुझे नफा नुकसान होगा या फायदा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कुछ नहीं बोलते। तिबारा वो सहाबाए किराम फिर हिम्मत कर आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं ये काम करना चाहता हूँ, इसमें मुझे नफा होगा या नुकसान होगा? इस बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं और कहते हैं फायदा होगा। तो सहाबाए किराम परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं गुस्ताखी माफ अगर मैं आपसे पूछूं, 3 दफा से मैं यही सवाल लेकर आ रहा था तो आपने तब तो कुछ नहीं बोले, आपने तीसरी दफा बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, सवाल तुम्हारा बेशक यही था, लेकिन जब तुम खुद ही किसी काम में कह रहे हो कि नुकसान होगा, यानी तुमने अपने दिमाग को सिग्नल खुद ही नुकसान का दे दिया है, तो वहां पर नफा नहीं होगा। पहले आप खुद पॉजिटिव हो, जब तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इस बार आपने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फायदा होगा। तो पॉजिटिविटी एक ऐसा हथियार है कि जिससे आप बड़ी बड़ी जंगें लड़ सकते हैं। आप देखिए कि यूक्रेन कितना छोटा सा मुल्क है और किस तरह रशिया से लड़ रहा है। और उससे बड़ी मिसाल आप देखिए कि हमारा फिलिस्तीन, अंबियाओं का शहर, शोदाओं का शहर, कितना कम पावरफुल है, ना मिलिट्री है, ना फोर्स है, ना हथियार है, ना खाना है, ना मीडिया, कुछ नहीं है। उसके बावजूद वो दुनिया के सबसे मक्कार तरीन मुल्क इजराइल और अमेरिका से लड़ रहा है और अभी तक 9 महीने हो गए, अभी तक लगातार डटा हुआ है। तो इसको हिम्मत कहते हैं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो खुदारा अपनी सोच पर लगाम लगाइए, हर बात पे निगेटिव मत होया करें, पॉजिटिव बस सोचा करें, हर बात में पॉजिटिव सोचा करें, हर नुकसान के बाद सोचा करें कि हो सकता है अल्लाह ताला मेरा और ज्यादा नुकसान करता है, ये कम नुकसान है, हो सकता है कुछ और हो जाता, मैं अपने साथ मेरा होता है, अल्लाह ना करे कभी मैं गिर जाती हूँ तो सोचती हूँ कि हो सकता था मेरी टांग टूट जाती, हाथ टूट जाता, अभी तो मैं गिरी हूँ, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। कभी मेरा पर्स भी छिन जाता है तो मैं यही सोचती हूँ कि हो सकता है पता नहीं क्या नुकसान होता, अल्लाह ने छोटे नुकसान पे बचा लिया। तो छोटे छोटे नुकसानों पर परेशान मत हुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करा करें कि अल्लाह तूने हमें बड़े नुकसान से बचा लिया, बड़े कफारे से बचा लिया, और सब्र और शुक्र अदा करा करें। और अपनी औलाद को भी यही बताएं, उनको यही नसीहत दें कि अगर एक इम्तिहान में आप नाकाम हो गए तो जिंदगी में 2 ही चीज होती है, या तो कामयाब होते हैं आप या नाकाम होते हैं। हर बात परेशान मत होया करें, परेशान होकर खुदकुशी मत करा करें, क्योंकि कामयाबी और नाकामी चोली दामन का साथ है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो कामयाब होंगे या नाकाम होंगे। तो नाकामियों से भी आप सीखा करें। तो ये चीजें आप तमाम लोगों को बताएं और अपनी जिंदगी को आसान करें, अपनी ख्वाहिशों को लगाम लगाएं, और जो भी अल्लाह ताला दे रहा है उस पर सब्र शुक्र करें, जो भी आपके पास है उस पर अल्लाह ताला का सब्र शुक्र करें, और सोचें कि हमारी जो जिंदगी है वो फानी, हम दुनिया में एग्जाम देने आए, और जब भी हम यहाँ से जाएंगे ना मालूम कब जाएंगे, आज चले जाए कल चले जाए, तो हमें अल्लाह ताला की नजरों में सुर्ख होना है। हमें कोई ऐसा गुनाह नहीं करना कि हमारी वहां पकड़ो जहां पर हमारी जिंदगी हमेशा
वहां पर एंटायर लाइफ हमारी जो है एक तरह से चलती रहेगी, वो एटर्निटी लाइफ है जो कभी खत्म नहीं होगी। ये वाली लाइफ जो है खत्म हो जाएगी। तो अपने बच्चों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, अपने दोस्तों को भी बताएं कि कभी भी नेगेटिव मत हो, हर नेगेटिव बात में पॉजिटिव पहलू जरूर निकालें और पॉजिटिव रहे, और अपने बच्चों को भी पॉजिटिव करें। उनको एक मुकाबला करने की मशीनें बिल्कुल मत बनाएं कि पड़ोसी से मुकाबला हो रहा है तो खानदान वालों से मुकाबला हो रहा है। उनको बताएं कि बेटा अगर तुम आज नाकाम हो गए तो इंशाल्लाह हो सकता है अगले साल तुम इससे भी बड़े झंडे गाड़ो। अगर कोई बात नहीं, इस बार तुम्हारा नाम नहीं है, अगले साल फिर देखते हैं। तो इस तरह अगर आप अपनी औलाद से अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे तो आपकी औलाद अपना हर दुख, हर दर्द आपको जरूर बताएगी। और जिस तरह इस वक्त यूथ के अंदर खुदकुशी का ट्रेंड बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे, 5वीं का बच्चा खुदकुशी कर रहा है, तो 9th का बच्चा खुदकुशी कर रहा है, तो 12th का बच्चा खुदकुशी कर रहा है, एडमिशन ना आने की वजह से खुदकुशी कर रहा है। हो सकता है हम इन तमाम चीजों पर बहुत जल्दी कंट्रोल पा सके, और उसके लिए पहल हमें ही करनी पड़ेगी, गार्जियन को करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी, हमें करनी पड़ेगी, ताकि हम एक अच्छे समाज में अच्छी जनरेशन को पैदा कर सकें।